Alright, so it has started. कल जब सेशन हम लोग फिनिश किए थे तो वो टाइम पे कुछ एक रोड ब्लॉक आ गया था हमें और व्हाट वाज द रोड ब्लॉक दैट my device R1 is sending out, let me open that PPT also. R1 is sending out these three routes as summary route to R2, है ना, तीनों नेटवर्क्स का एक summary route R2 को भेज रहा है, which R2 was getting, but apart from this summary route, R2 was also getting these three individual routes, right? So the routing table was like this. Show IP route. Let me show you. So this is the routing table, right? There is a summary route which I am getting from R1, okay, and which interface it is? Fast Ethernet 0x0, ठीक है? Fast Ethernet 0x0 R1 से मुझे ये summary route मिल रहा है, which was expected, but ये तीन नेटवर्क जो है 1.1, 2.1, 3.1 ये भी मुझे मिल रहे थे और कल हमने ध्यान नहीं दिया, ये हमें मिल रहे हैं सीरियल 0x1 इंटरफेस से, which is this interface. So हुआ क्या है एक्चुअली, R1 is advertising these routes not just to R2, ये R3 और R4 को भी तो एडवर्टाइज कर रहा है. तो ये जो इंडिविजुअल रूट्स हैं जो R3 और R4 के पास में गए, R1 से फिर R5 के पास गए और फिर R2 के पास इस इंटरफेस से निकल आए. तो आपको अगर ये चीज रोकना है तो आपको क्या करना है, तीनों ही इंटरफेसेस पे, R1 के तीनों इंटरफेसेस पे आपको समरी रूट लगाना पड़ेगा ताकि नेटवर्क आपका जो है वो कहीं से घूम फिर के और इंडिविजुअल नेटवर्क ना आए. सो बिकॉज दिस इज अ प्रॉब्लम, राइट? हम लोग लेट मी टेल यू वन थिंग ऑफ रूट समराइजेशन. लेट मी ओपन पेंट, okay, and let me go to root summarization वाले के लिए let's take this one. Okay, all right, so let's say we have three routers, okay, and these three routers are connected in this way. These routers are R1, R2 and R3, ठीक है? R1 के साथ तीन नेटवर्क कनेक्टेड है, ठीक है? And these networks are again 1.1.1.0, okay, then 1.1.2.0 and 1.1.3.0, okay. So R1, what R1 is doing now, these interfaces have 0x0, take any interface for that matter, it's okay to take any interfaces, F0x1. Okay, so what's happening here is R1 is sending out a summary route. मैंने manual summarization कर लूं या क्या कर लूं मैं, ऑटो समराइजेशन या मैनुअल समराइजेशन, किसी की भी जब हम बात कर रहे हैं इधर. तो ऑटो समराइजेशन में क्या हो रहा था, ऑटो समराइजेशन में R1 was sending a route 1.0.0.0/8, ठीक है? 1.1. I'm so sorry guys, let me make it more clear. R1 was sending out a route to R2 1.1.0.0/8, let's say. Now it is 1.0, sorry, 1.0.0.0/8. Now the thing is R2 was sending this route to R3, ठीक है? R3 is also getting
1.0.0.0/8। अब मैं एक सिचुएशन में आपको डालने जा रहा हूं। If in case R3 has 3 networks, 1.1.4.0, 1.1.5.0, 1.1.6.0, and auto summarization is enabled on R3 as well. R3 पे भी auto summarization enabled है, तो होगा क्या? R3 क्या करेगा? R3 will send a summary route to R2, और वो summary route क्या होगा? 1.0.0.0/8 है कि नहीं? है ना? तो R2 क्या देखेगा? R2 देखेगा कि I am getting a summary route. I am getting a route this from my interface F0/0. Then again you will look at the same route coming in from interface fast Ethernet 0/1. तो क्या राउटर कभी एक नेटवर्क को दो इंटरफेस से रख सकता है अपना राउटिंग टेबल में? यस और नो? No. Okay, there is a question. It could be 1.1.0.0/16. No, it won't actually. As I said on day one, it all depends. It's a class A IP address. So in old iOS versions, it was very lazy auto summarization, where it will only check the first octet and then it will send a /8 route for class A auto summarization. Now after that, अभी कुछ जो लेटेस्ट आ रहे हैं उसमें हम लोग को जरूर ये मिलता है कि वो कॉमन ऑक्टेट देखता है। इवन इफ क्लास ए का आईपी है तो भी वो अगर कॉमन है ऑक्टेट 2 और 3 तो वो देख के 1.1.0.0/16 भेज सकता है। सो इट डिपेंड्स ऑन द iOS वर्जन। बट एज यू आर सेइंग नो, आप लोग बोले, मेरा क्वेश्चन फिर से मैं दोहरा रहा हूं आपको कि एक राउटर के राउटिंग टेबल में, इन राउटर्स राउटिंग टेबल, एक नेटवर्क के लिए फॉर वन नेटवर्क कैन देयर बी 2 exit interfaces? My question is this: to reach to one network, can a router have 2 interfaces in its routing table, exit interfaces? यस और नो? आप लोगों ने नो बोला है, कोई है जो अभी यस बोल रहा है? क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? डिड यू गेट द क्वेश्चन? Balram is saying no. Raghuveer, Manjeet, mute yourself. Okay. Manthan, yes. Okay, I need more answers. Let me repeat my question. In a router's routing table, for one network to reach to one network, can it have 2 exit interfaces? No. Yes. Yes, हो सकते, दो एग्जिट इंटरफेस हो सकते हैं। हाँ, तो और मैं पूछ क्या रहा हूं, ये तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या इधर बंदों? एक नेटवर्क पे पहुंचने के लिए जब R1 पे हम लोग जाके देखें तो R1 पे, R1 का राउटिंग टेबल में डू शो IP route. This is R1's routing table. Okay. Oops, sorry. I just messed up with it. तो इस राउटिंग टेबल में 5555 तक पहुंचने के लिए 2 एग्जिट इंटरफेस, 3 एग्जिट इंटरफेस है या नहीं? उसे ही तो लोड बैलेंसिंग कहते हैं।
जब एक नेटवर्क तक पहुंचने के लिए एक से ज्यादा इंटरफेस से ट्रैफिक बाहर निकाल सके। देखो जी, सवाल जो है ना वो सीधा सा था, पर आप लोग को समझ ही नहीं आया, पता नहीं क्यों ऐसे। बी रेडी फॉर दीज क्वेश्चंस, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन गाइस। सो there may be multiple exit interfaces to reach out to a single network. There is no doubt about it. Okay, so R2 क्या करेगा इस केस में? इधर से भी सेम नेटवर्क का इंफॉर्मेशन आ रहा है, इधर से भी सेम नेटवर्क का इंफॉर्मेशन आ रहा है। अभी R2 क्या करेगा? What will be the next step? क्या ये दोनों को रख लेगा राउटिंग टेबल में, या फिर ये एक को ही रखेगा? एक को रखेगा तो किस आधार पे रखेगा, है ना? R1 से if there is an update coming from R1 for the same route, if it's getting an update from R3, what will be the tiebreaker if he just wants to keep one in its routing table, है ना? ये भी हम पढ़ चुके हैं in fundamentals, in basics, we have done all this. So now tell me, will it keep the route from R1 or R3 or both? और if it takes only one, like जो लास्ट भेजेगा अपडेट उसका ट्रस्ट करेगा या क्या करेगा? I need an answer. Just type it on chat and I need the answer from everyone. Okay, so you guys are saying both, right? So longest match, there is the prefix is same, Shekhar, 1.0.0.0/8 from both sides. The prefix is same, /8, right? So there is no doubt about matching the prefix. AD का भी प्रॉब्लम नहीं है, both are coming through, let's say, EIGRP. So AD is 90. It will check the metric. Okay, that's a great question. Metric check karega, but as per our diagram, here we have fast Ethernet interface between R2, R1 and R2, R3, and then these are loopback addresses. So they will, R2 will get the routes from R1 and R3 with the same metric. So metric में भी tie हो जाएगा. Okay, so finally the answer is both. Load balancing, as Shekhar has pointed out. So R2 क्या करेगा? R2 कहेगा अच्छा जी, दोनों तरफ से आ रहा है, सेम AD, सेम metric, सेम prefix, सब कुछ तो सेम है, तो ठीक है, यानी कि मेरे पास में दो रास्ते हैं पहुंचने के. So let's keep it in my routing table. Okay, so it will put both the routes in its routing table. Now here the problem begins. What problem? The problem is, if in case I have a network connected down here, इधर मेरा एक switch लगा हुआ है, and with this switch I have end hosts attached, और ये जो end host है मेरा, let's say A, if this A wants to send some data for 1.1.1.1, what will happen? The data will reach to this router. Destination is 1.1.1.1. Ideally 1.1.1.1 lies behind this subnet. ठीक है, इसके पीछे है 1.1.1.1. तो ट्रैफिक जो है R2 को इधर भेजना चाहिए R1 के पास. R1 should send it to this network. लेकिन होगा क्या? R2 जो है वो क्या करेगा? पर पैकेट लोड बैलेंसिंग. एक पैकेट इधर भेजेगा R1 की तरफ, दूसरा पैकेट R3 की तरफ, फिर एक पैकेट R1. तो R1 पे जो पैकेट जा रहे हैं, लेट्स से पैकेट नंबर 1, R1 की तरफ पैकेट नंबर 2, देन पैकेट नंबर 3, देन पैकेट नंबर 4, पैकेट नंबर 5, पैकेट नंबर 6. तो पैकेट नंबर 1, 3, 5 तो मिल जाएंगे, पर 2, 3, 2, 4, 6 they will get dropped because R3 don't have anything like 1.1.1.1 connected behind. So R3 will drop it.
राइट। तो आधे पैकेट पहुंच गए, आधे ड्रॉप हो गए, काम तो नहीं हुआ साहब। ये प्रॉब्लम समराइजेशन में आ जाती है, ठीक है ना, ये प्रॉब्लम समराइजेशन में आ जाती है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है भाई? प्रॉब्लम समझ में आई या नहीं? कोई है जिसको नहीं समझ आई? जस्ट लेट मी नो। At least say yes or no, yes or no something. Okay, you got it, Pushkar? Good. Okay. Good. So, all right. So the solution is no auto summary. है ना, हम लोग कमांड चलाते हैं ना, बिटते ही EIGRP में जाओ, जाते ही कमांड चलाओ ऑटो समरी, ताकि ऐसा प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि इस वजह से राउटिंग लूप्स भी बन सकते हैं। यहाँ तो अभी पैकेट ड्रॉप हुआ है क्योंकि हमारा जो है क्लोज सर्किट नहीं बन रहा है कहीं भी। अगर क्लोज सर्किट बनेगा तो कुछ सिचुएशंस में राउटिंग लूप्स भी बन सकते हैं। सो टू अवॉइड दीज थिंग्स in EIGRP, what you can do is you have to, not just in EIGRP, for that matter with any routing, static routing हो चाहे आपका डायनेमिक राउटिंग हो, आप क्या करोगे, आपको बहुत अच्छे से साफ साफ ये कहा जाता है कि डिजाइन योर IP addressing properly. Don't keep 1.1.1.0, 2.0, 3.0 here and 4, 5, 6 here. Keep all 1 dot something here, and if you want to use something, some subnets, then use them. Use those which are starting from something else, like 2 dot something, right? So IP address जब भी नेटवर्क आपका बनता है तो in initial stages itself आप लोग आईपी एड्रेसिंग को डिजाइन करते हो, और वो डिजाइन जो है वो अच्छा डिजाइन किसको बोलते हैं, विच वन इज अ गुड डिजाइन, अ बेटर डिजाइन, विच हैज दिस क्लियरली डिमार्क्ड कि आपका समराइजेशन करना पड़ सकता है, एंड इन दैट केस this kind of mess should not happen. Let's keep all 1 here, 2 here, 3 somewhere else. So IP addressing properly design होना चाहिए। अगर properly design नहीं भी है तो क्या करो, तो सबनेटिंग मत करो, सॉरी समराइजेशन मत करो, और अगर समराइजेशन करना भी है तो फिर आप मैनुअल समराइजेशन करो, वो भी ये ध्यान रखते हुए कि कहीं आप ऐसी स्थिति में ना उलझ जाओ, ठीक है ना। मैनुअल समराइजेशन में क्या कर सकते हैं आप, इस समय मैनुअल समराइजेशन अगर किए तो 1.1.0.0/22 ये नेटवर्क आप इधर एडवर्टाइज करो R1 से R2 की तरफ, लेकिन R3 से ये जो आ रहा है 4, 5, 6, तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप 1.1.0.0/21 अगर डाल दिए /21, if you will advertise this from R3 to R2, then again the problem will start happening. तो one sided summarization कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा, both side summarization, just forget it. So this is something I just wanted to tell you. I hope this is clear. So we'll move forward with the yesterday's lab now. All right. सो कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कर दिए थे, EIGRP अब आ गया था, हमने समराइजेशन करके देख लिया था, और वो समराइजेशन सही आ रहा है R1 से R2 के पास, लेकिन इंडिविजुअल रूट्स भी आ रहे हैं, तो उनको हम लोग सीरियल 0/0 और सीरियल 0/2 इन दोनों पे भी समरी रूट लगा देते हैं, सो दैट वी विल बी एबल टू चेक कि कहीं से लीक होके तो नहीं जा रहे हैं। सो लेट्स डू दैट। Do show run interface F0/0, जो फास्ट इथरनेट इंटरफेस पे ये समरी रूट मैंने लगाया हुआ है, इस सेम समरी रूट को मैं लगा दूंगा इंटरफेस सीरियल 0/1 एंड इंटरफेस सीरियल 0/2। ओके, सो रूट लग गया सारे इंटरफेसेस पे। नाउ R2 के पास में इंडिविजुअल रूट्स नहीं होने चाहिए, ओके क्योंकि अब सब तरफ से समरी रूट ही आएगा, तो R2 का राउटिंग टेबल में इंडिविजुअल रूट नहीं होना चाहिए, जो कि नहीं है।
आप देख रहे हैं, अब 1111 के लिए पहले क्या था, पहले 1111 के लिए ये देख रहे हो 1.1 3.1 2.1 इंडिविजुअल रूट्स भी थे एंड इट वाज आल्सो गेटिंग ए समरी रूट, है ना। अभी क्या हो रहा है, अभी 1111 के लिए इट इज just getting a summary route which I am advertising via fast ethernet 0x0. Individual routes are no more there. Is it fine? Any doubts? All right. Now we talked about something called as EIGRP summarization कि हम लोग EIGRP authentication कि हम authentication का lab करेंगे. What do you mean by authentication? So authentication is a security feature. आप सबको मालूम होगा, है ना. Authentication is a security feature, and if I have two routers, okay, let's say more than two, this is hub router, these are branch routers, okay, and there are so many routers, branch routers are trying to connect to this hub router. So just to keep my network secure, what I generally do is मैं ये कहता हूं कि ब्रांच राउटर्स जो भी हब के साथ कनेक्ट होना तो वो ऑथेंटिकेट होने चाहिए. अगर ऑथेंटिकेट होंगे, अगर पासवर्ड मैच करेंगे तो वो EIGRP नेबर बने, नहीं तो EIGRP neighborship should not come up until and unless they are properly authenticated, the password is matching, then only they should bring up the neighborship. So this EIGRP authentication, now this authentication can be done in any routing protocol for that matter. So this is of two types. One is clear text authentication and the second one is MD5. Clear text आपको पता है, जो पासवर्ड मैं दूंगा वो पासवर्ड दिखेगा, है ना, that password will be visible. Whereas MD5 authentication क्या है? MD5 authentication is authentication that is what? Where the password is encrypted. Okay, so if in case there is something goes wrong, if in case there is something wrong with let's say any neighbor, if I am sending a key out here, okay, for authentication, or if he is sending out a key for authentication, if someone hacks it, then they can misuse this key, है ना. तो हमेशा encrypted keys use करना ठीक रहता है. तो MD5 we can use for authentication. Okay, so these are the two methods that can be used. So what we'll do now is R1 और R2 के बीच में authentication लगा के देखता हूं मैं, ठीक है. So let's do that. Let's do it first on R1. So R1 is connected to R2 through which interface? Fast Ethernet 0x0 से जुड़ा हुआ है R2 से. Now this is interface specific, ठीक है. आप चाहो तो इसे राउटिंग प्रोटोकॉल में जाके भी लगा सकते हो, ताकि जितने भी डिवाइसेस जैसे R1 के नेबर्स R2, R3, R4 तीनों हैं, या और भी कोई अगर नया नेबर बनना चाहता है तो everyone should be authenticated, should get authenticated first. So that can be done under routing process. If you just want to authenticate with one neighbor, then that also can be done on interface level, है ना. सिर्फ एक ही नेबर के साथ में करना है तो इंटरफेस पे लगाओगे तो काम हो जाएगा. तो इंटरफेस पे मैं गया हूं, तो IP authentication mode EIGRP 1, आप देख रहे हैं क्या ऑप्शन है मेरे पास में? IP authentication mode EIGRP 1 MD5. क्लियर टेक्स्ट का ऑप्शन मेरे पास में नहीं है,
सिर्फ MD5, तो ये ध्यान रखना EIGRP only supports MD5, whereas OSPF supports MD5 and clear text both. So it supports just MD5, तो मैंने लगा दिया IP authentication mode EIGRP1 MD5. Now you can see there is a message popped up as soon as I hit enter. It says neighbor change. So neighbor state change है ना, neighbor 10.1.12.2 जो R2 है is down. The neighbor is down. Authentication mode changed. So as soon as you will put an authentication method ना और अगर वो दूसरे राउटर के पास में कॉन्फ़िगर नहीं है तो your neighborship will go down as soon as you configure authentication mode. So that's fine. Let's see. The other command is IP authentication keychain EIGRP1 and key name. तो आपको एक ऑथेंटिकेशन की बनानी पड़ेगी और वो की को यहां पर डिफाइन करना पड़ेगा. तो ऑथेंटिकेशन की क्या होती है? लेट्स फर्स्ट क्रिएट अ की चेन. तो मैं यहां पर कमांड लगाऊंगा की क्या था वो, की चेन एंड इट्स नेम. की चेन का कोई नाम दे दिया, मैंने नाम दे दिया EIGRP. ओके, नाउ आई एम इन अ की चेन मोड. ठीक है, इधर हम लोग डिफाइन करेंगे की आइडेंटिफायर. तो की आइडेंटिफायर आई कैन गिव एनी नंबर टू द की विच आई एम गोइंग टू डिफाइन. तो की आइडेंटिफायर की 1 दे दिया मैंने. एंड नाउ यू विल डिफाइन की स्ट्रिंग. ठीक है, की स्ट्रिंग मैंने दे दिया सिस्को. ओके, की स्ट्रिंग क्वेश्चन मार्क लगाओ. ये बोलता है कि एनक्रिप्टेड, अनएनक्रिप्टेड, हिडन, दिस दैट. तो आई एम सिंपली गिविंग सिस्को. नाउ द क्वेश्चन इज, बिफोर क्वेश्चन, इज इट क्लियर? की चेन के अंदर हम लोग गए, वहां पर हमने दिया की, where is that, की आइडेंटिफायर. ओके, की 1 और थर्ड स्टेप की स्ट्रिंग. तो जैसे आपका होता है ना, चाबी ढूंढो, चाबी इस ताले में कौन सी लगेगी, तो आप कहते हो अच्छा ये ताले में ना वो छल्ले वाली लगेगी चाबी. वो छल्ले वाली चाबी कहाँ लगी? वो दीवार के उस खूंटी पे टंगी हुई है. तो सेम लाइक दैट, पहले खूंटी, फिर उसके बाद छल्ला, उसके बाद चाबी, है ना. इट्स लाइक दैट. सो अंडर वन की चेन यू कैन डिफाइन multiple key identifiers. Under one key identifier you can define multiple keys. No, I'm sorry, you can define multiple key identifier, and under each key identifier you can define a separate key. Okay, so a keychain के अंदर आप multiple key identifier लगा सकते हो और हर key identifier के अंदर आप अलग key define कर सकते हो. So this is how it works. तो फाइनली जो पासवर्ड है वो क्या है, कहना क्या चाह रहे हैं कि सिस्को इज द पासवर्ड, सिस्को इज द की. ओके, सो ये मैंने की डिफाइन कर दिया. मेरा की का नाम क्या है? EIGRP की. सो व्हाट आई डू इज आई नाउ गो टू द इंटरफेस फास्ट Ethernet 0x0 IP EIGRP IP authentication की चेन का नाम क्या है भाई? EIGRP1. सॉरी, की चेन का नाम आप देना है. एंड माय की चेन वाज EIGRP की. ओके, एंटर. दैट्स इट. R1 पे काम हो गया है ना. R1 पे हमने किया क्या? I'll tell you what all commands we have given. Okay, so what all we did? Where it went? Okay, let's use Notepad. Okay, R1.
what I did was under interface fast Ethernet 0x0, I defined IP authentication, EIGRP1 MD5. Then I created a keychain EIGRP key. Okay, under that key identifier, then key string, Cisco, exit, interface fast Ethernet 0x0, IP authentication, EIGRP1 keychain, IP authentication keychain, EIGRP1, EIGRP. That's it. Okay, so one command and then defining the key and then another command. Okay, so इसमें the sequence of command doesn't matter. आप पहले कोई सा भी कमांड दे सकते हो, पहले आप की चेन डिफाइन कर लो. This is the best way. आप की चेन डिफाइन कर लो, ठीक है. उसके बाद में आप इंटरफेस पे गए, इंटरफेस पे जाके आपने ये दोनों कमांड लगा दिए. That's it. So the sequence of commands doesn't matter here. So it's always fine, even if you are defining the key first or okay, you want it in chat box. All right, I am pasting it here. Okay. All right, chat पे paste कर दिया है. You guys can take now. Okay. Prashant has a question. If you have multiple key identifier definer under keychain, then which key ID will be selected? Yeah, that's a good question. Actually, what happens is whenever, see, these keys are very, you can say they can be used for multiple things, right? हम लोग क्या करते हैं, हम लोग की डिफाइन किया, अभी immediately की डिफाइन करके हम लोग उसको authentication करवा दिए. What we can do is we can define multiple keys so that कुछ दिनों तक first week of this month key 1 key identifier 1 will work, then for next one next week key identifier 2 will work, next week this key will be available or this key will be valid for this time period. है ना, नया साल जब शुरू हो रहा है on the 1st of January, this new key should get in place. तो ऐसा करके we can actually plan a lot of things around these keys, right? So it's not just that simple that we are actually doing it right now. There are so many things that can be, it's very flexible. The key chain which we are defining by simply right now it's just key 1, right? Even if we'll define 2 key strings, right, then in that case we have to define the other parameters also. Which key string, which key identifier to use till what time, or you want to use both of them, then again you have to define that you know there must be some time difference between them and all. So for that actually we need to go dig deep into the key concept of how these routers use it and you know how do they do it. So I just gave you a simple explanation of what all we can do with these key strings and how to why we define multiple keys and all. We can also use a single key string and ऐसा हो सकता है, देखो हमारे पास में ना नेटवर्क में बहुत सारे situations आ सकते हैं. तो in one of a situation what we can do is, ये मेरा एक router है, this is connected to a service provider using any technology, okay, but here I am using only one interface, serial 0x0. Now it is having a neighborship with R2. This is my router 1, this is router 2, 3 and router 4. ठीक है, तो मैं serial 0x0 interface पे ही, ठीक है, मैं सब interfaces भी नहीं बना रहा हूँ. Let's take example of that. So this is just a single interface, serial 0x0. अभी मेरे को authentication लगाना है R2 के साथ, R3 के साथ, R4 के साथ और इन तीनों के साथ में,
तीनों के साथ में अलग अलग की यूज करना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू यूज सिस्को विद दिस राउटर, सिस्को 1 विद दिस राउटर, सिस्को 2 विद दिस राउटर, है ना. तो इस इंटरफेस पे की स्ट्रिंग तो मैं एक ही लगाऊंगा, की तो मैं एक ही लगाऊंगा ना. उसमें की आइडेंटिफायर और की चेन वो अलग अलग हो सकते हैं, है ना. तो हाउ टू यूज देम एंड डू ऑल that can be done and used, but how and what, this is beyond our syllabus, so we won't go into that, but you can try it out, just google it, you'll definitely find some good Cisco document which explains this. All right, so I hope this is fine. So now we are moving forward with the R2's configuration. Let's go to R2. Conf T interface fast Ethernet. Okay, before that, let's define the key first. Key chain EIGRP key 1, key string Cisco. Okay, interface fast Ethernet 0x0 IP EIGRP, IP authentication, mode EIGRP1, MD5, IP authentication, key chain EIGRP1, and name of the key. So EIGRP key. तो अभी की लग गया है. Now the neighbor has come up, right? You can see now the neighbor 12.1 is up, new adjacency. It's all good. So इंटरफेस लेवल पे भी लगा सकते हैं और राउटिंग लेवल पे भी लगा सकते हैं. राउटर EIGRP1. Okay. I need to check what is the command here. I guess there must be some command. Let me see. Address family, auto summary, default, metric distance. Okay, EIGRP authentication. No. Distance, EIGRP, neighbor, network auxiliary, plus interface, distribute, timers, traffic. Neighbor. Okay, no. What? This is neighbor. So we can define neighbors manually also in some cases if required. Let me see. I don't know. It seems it's not there. To show version, let's check iOS version what we are running here. It's 12. Oh, it's very old version. Okay, so yeah. Boom. Yeah, so we need to check it on newer version to verify, because on global level, on routing level, it should support. Because if you will configure OSPF, then in OSPF you can do that. Distance,
area 0, yeah, here it is, authentication, whatever authentication method you want to use. So you can define it on a router level in OSPF using this command. But I'm not sure actually in EIGRP also I thought it supports. That we need to check. I'll check on a newer iOS version and I'll update you guys tomorrow. But on interface level, this is how we do it. So is that clear? Authentication. Just keep saying yes or no if I ask you it's okay or not. Okay, so the next one is EIGRP stub. EIGRP stub is basically a feature which we can we generally use in such environments where we have a hub and multiple स्पोक उनके साथ जुड़े हुए हैं, या तो ब्रांच राउटर्स इनको बोल लो या फिर आप इनको एज राउटर्स बोल लो. तो ये राउटर्स के पास में क्वेरी आने का कोई मतलब नहीं होता. इन केस R3 के पास में कहीं से इंफॉर्मेशन आती है कोई नेटवर्क डाउन का, तो R3 शुड not send a query message to these routers, right? It doesn't make sense because they don't have any other route except this one, right? This is the only way they are hanging into the network. So what we can do is we can define these edge routers. ये edge routers को आप क्या कर दो, stub router define कर दो. जैसे R2 है तो R2 पे जाके, although हमारे situation में R2 is not the edge router, but I am just showing you how we define a stub router. So router EIGRP1, okay, EIGRP stub. This is the command. Now क्वेश्चन मार्क में आगे लगाया तो यहाँ आप देखोगे यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस भी आ गए. आप ये कमांड को इधर एंड भी कर सकते हो और you can use all these options, any of these options. So connected, do advertise connected routes. Leak map, allow dynamic prefixes based on leak maps. Receive only, set IP IGRP as receive only enabled. Do advertise redistributed routes. Do advertise static routes. Do advertise summary routes. तो ये बहुत सारे options हैं कि stub बना रहा हूं, लेकिन stub बनाने के साथ में मेरा limitation क्या क्या है. क्या मैं कुछ एडवर्टाइज कर सकता हूं? हाँ बिल्कुल, स्टब राउटर ही तो बने, उसमें सिर्फ क्वेरी ही तो रोकना है. तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ पर एंटर मार दो, हो जाएगा काम. ठीक है, अभी देखो नेबर जो है, नेबर दिस एंड न्यू एडजेसेंसी बना, पहले डाउन हुआ. ठीक है, इंफॉर्मेशन चेंज्ड, ओके, न्यू एडजेसेंसी. सो स्टब बनाना है क्वेरी नहीं सुनने के लिए तो काम हो गया. लेकिन मैं कहूं कि तुम स्टब भी बन जाओ और स्टब बनने के बाद ना तुम उसको जो अपना नेबर है R1 या R5 उसको यू जस्ट सेंड द कनेक्टेड रूट्स. एडवर्टाइज जो नेटवर्क एडवर्टाइज कर रहे हो तुम अपने नेबर को, उस एडवर्टीजमेंट पे भी अगर तुम चाहते हो कि भाई सिर्फ मेरे को कुछ लिमिटेड रूट्स उधर मैं एडवर्टाइज करूं, तो you can define that as well, like connected routes या leak map define कर दो. leak map में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कुछ नेटवर्क्स को एडवर्टाइज होने से रोक रहे हैं, उनमें से कुछ को लीक करवा देते हैं, तो वो लीक मैप के थ्रू करवा सकते हैं. पॉलिसी हम लोग लगा सकते हैं कि हमारे जो फला नेटवर्क्स है, instead of sending out 10 routes to my neighbor, I just want to send out डिफॉल्ट रूट. लेकिन डिफॉल्ट रूट के अलावा मैं चाहता हूं नहीं यार, ये दो जो नेटवर्क है, these networks are important and that he should advertise these two routes separately to the neighbor. It should not stop it. तो आप उसको लीक मैप यूज करके लीक करवा सकते हैं. ठीक है, रिसीव ओनली, सिर्फ जो नेबर है उससे आप रिसीव करो, आप उसको एडवर्टाइज कुछ मत करो. रीडिस्ट्रीब्यूटेड, तो अगर आपके पास में कोई नेटवर्क है जो आप रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, अगर R2 पे कोई नेटवर्क रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है
तो क्या वो रीडिस्ट्रीब्यूटेड राउट जो है उनको एडवर्टाइज करना है नहीं करना है? तो अगर आप रीडिस्ट्रीब्यूटेड डालोगे तो सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूटेड को एडवर्टाइज करेगा, ऐसा बोल रहा है। डू एडवर्टाइज रीडिस्ट्रीब्यूटेड राउट्स, ओके, हाँ, ये रीडिस्ट्रीब्यूटेड राउट्स को भी एडवर्टाइज करेगा, बिकॉज जनरली स्टब राउटर के पास में रीडिस्ट्रीब्यूट करने का कुछ होता नहीं है। इन दिस सिचुएशन हम रीडिस्ट्रीब्यूट कब करते हैं रूट्स? जब एक राउटर को किसी दूसरे राउटर से कनेक्टेड है और कोई नेटवर्क्स मिल रहे हैं और उन नेटवर्क्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करके मैं मेरा नेटवर्क में आगे डाल रहा हूं। इफ माय राउटर इज एन एज राउटर which is connecting two different networks, इधर OSPF चल रहा है, इधर EIGRP चल रहा है ना, उन दोनों के बीच में मेरा राउटर लगा हुआ है, तो OSPF के रूट्स को EIGRP में और EIGRP के रूट्स को OSPF में रीडिस्ट्रीब्यूट करवा के भेज दे रहा है। तो ऐसा अगर राउटर है तो मैं उसको स्टेप बनाऊंगा क्यों? लेकिन अगर मान लो कोई सिचुएशन है कि आप उधर क्वेरी लाना नहीं चाहते हो, लेकिन आप उसको स्टेप बना देते हो उसके कारण, और फिर भी आप रीडिस्ट्रीब्यूट रूट्स वगैरह वो भेजे करे वो सब काम, तो आप ये डिफाइन कर सकते हो। तो वी डू हैव मल्टीपल ऑप्शंस एक्चुअली। आई वुड एनकरेज यू गाइस टू एक्चुअली यूज दीज ऑप्शंस एंड ट्राई टू सी द रिजल्ट्स। ठीक है, आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिल रहे हैं या नहीं, आप उसको सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूटेड राउट करके चेक करो क्या आ रहा है, उधर R1 पे सारे रूट्स आ रहे हैं या सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूटेड आ रहा है वगैरह। डिजाइन आप ऐसा लेना, आप अलग डिजाइन मत लेना। आपको रूट रीडिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं आता होगा CCNA वालों को। I'll give you a very quick and simple example, रूट को रीडिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। मैं क्या करूंगा, ये जो मेरे R2 का लूप बैक राउट है ना, R2 का जो लूप बैक राउट है, उस लूप बैक वाले रूट को मैं EIGRP में एडवर्टाइज नहीं करूंगा अभी फिलहाल। तो देखोगे आप अगर इसका राउटिंग टेबल तो देखोगे तो R1 के पास में 2.2.2.2 EIGRP से मिल रहा है, जो कि R2 का लूप बैक इंटरफेस का IP है। मैं इसको रोक देता हूं, मैं R2 पे जाके और राउटर EIGRP में जाके नो नेटवर्क 2.2.2.2 कमांड चला देता। अभी ये R1 की राउटिंग टेबल से निकल जाना चाहिए। मैं फिर से चेक करता हूं, हाँ 1 है 3 है लेकिन 2 गया अभी, ठीक है 2 गया। तो ये जो 2 वाला नेटवर्क है इसको हम मानते हैं ये कोई बाहरी नेटवर्क है, R2 पे आगे कहीं सर्विस प्रोवाइडर पे जुड़ा हुआ है। तो उस 2 वाले नेटवर्क को हम EIGRP में एडवर्टाइज करने के बजाय, EIGRP में तो मैं सिर्फ इंटरनल रूट्स को ही एडवर्टाइज करूंगा। Why would I advertise a route in EIGRP which is an outside route, right? So I am considering 2.2.2.2 as an outside route and I'll redistribute that route in EIGRP. It's a route which is लूप बैक एड्रेस है ना उसका, कहीं किसी प्रोटोकॉल के थ्रू R2 को नहीं मिल रहा है, ये इसका डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है। डू शो IP राउट आपको दिख रहा है R2 का राउटिंग टेबल में 2.2.2.2 इट इज शोइंग एज डायरेक्टली कनेक्टेड रूट, है ना। तो R2 इज नॉट गेटिंग दिस रूट वाया एनी राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है, ये इसका डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है। मैंने तो कहा कि OSPF है इधर, इधर EIGRP है, तो इसका रूट इधर डालने के लिए उसका रूट इधर डालने के लिए हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ऐसा नहीं है। इधर EIGRP है और इधर स्टैटिक रूट है या फिर डायरेक्टली कनेक्टेड राउट है किसी राउटर का, तो उसको भी रीडिस्ट्रीब्यूट करके हम लोग अंदर डाल सकते हैं। So we'll do this redistribution in much more depth in our forthcoming sessions. But let me give you a simple example. Okay, so मैं क्या करूंगा, रूट रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, कनेक्टेड रूट रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, अब सारे कनेक्टेड रूट तो नहीं रीडिस्ट्रीब्यूट करने, R2 के और दूसरे कनेक्टेड रूट कौन से हैं, ये वाला है सीरियल 0x1, ये फास्ट इथरनेट वाला, ये लूप बैक वाला, 3 रूट है इसके पास। तो मैं अगर रीडिस्ट्रीब्यूट करूं कनेक्टेड बोल के राउटर EIGRP में, यहाँ एक कमांड चलेगी रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड और एंटर मार दूं तो कनेक्टेड रूट सारे ही रीडिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करेगा ये, जो कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ 2.2.2.2 चाहिए स्पेसिफिक रूट। तो ये कह रहा अच्छा, तो उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, रूट मैप।
ठीक है, तो रूट मैप का नाम बोलो, तो अभी रूट मैप हमने बनाया नहीं, तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं, पहले हम जाएंगे पीछे, एक रूट मैप बनाएंगे, ठीक है। लेकिन रूट मैप जो है उस पे चलते हैं पहले, आओ। तो हम EIGRP में घुसे, रिडिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश किए, कोशिश के दौरान हमें पता लगा कि ऐसे रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, वी हैव टू गो बैक एंड क्रिएट अ रूट मैप। तो मैं इधर एक कमांड चलाया, रूट मैप रीडिस, ओके, एंटर। अभी हम ये डिनाई परमिट ये सब भूल जाओ, रूट मैप रीडिस नाम से हमने बना दिया। अब क्या करना है, अब मुझे करना है मैच स्टेटमेंट लगाना है, क्या कि मैच करना खाली मेरा लूप बैक जीरो इंटरफेस को, क्योंकि वही मैच होना चाहिए, वही रिडिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो मैं कहूं मैच लूप, अरे लूप बैक तो आ नहीं रहा है, क्वेश्चन मार्क। तो आप यहां देखोगे मैच इंटरफेस, ठीक है, यहां पर मैच इंटरफेस, कौन सा इंटरफेस, लूप बैक जीरो आ रहा है, एंटर मार दो, एग्जिट। अब मैं राउटर EIGRP में जाऊंगा, यहां कमांड लगाऊंगा रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP, सॉरी रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड रूट मैप, और रूट मैप का नाम क्या है जो मैंने दिया, रीडिस, ठीक है। मैं उस रूट का जो रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं उसका मैट्रिक भी डिफाइन कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं कर रहा, लेट EIGRP डू दैट ऑन इट्स ओन, और मैंने किया एंटर, हो गया रिडिस्ट्रीब्यूट। R1 पे जाऊंगा तो क्या मुझे ये रूट दिखेगा, हाँ जी बिल्कुल दिखना चाहिए, रिडिस्ट्रीब्यूट करवा दिया हमने। और ये देखिए ये नेटवर्क दिख रहा है EIGRP से, लेकिन अब यहाँ EIGRP के अलावा एक चीज और क्या दिख रही है, D के अलावा EX, विच इज एक्सटर्नल, इधर होगा कहीं तो EX whatever wherever it's not there, ये रहा EIGRP external, okay, so it's an EIGRP external route, it's coming in EIGRP domain from outside, ठीक है, रिडिस्ट्रीब्यूट होके 2.2.2.2। अब आप एक फर्क और देखिए, ये नेटवर्क का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या है, जो हमारे इंटरनल नेटवर्क हैं जो EIGRP से मिल रहे हैं, सिंपल नेटवर्क्स विच इट इज शोइंग थ्रू D, इसका कितना AD है 90, और जो एक्सटर्नल रूट है उसका कितना AD है 170। मतलब सीधा सीधा है कि बाहर से जो आएगा उसको भैया प्राथमिकता नहीं मिलेगी, द इंटरनल रूट्स विल ऑलवेज गेट प्रायोरिटी, उनका AD हमेशा कम रहेगा, ठीक है जी। सो रिडिस्ट्रीब्यूट कर लिया हमने, अभी हम R2 पे जाएंगे, और R2 पे आप, मैं नहीं जाऊंगा, आप लोग जाएंगे, और आप लोग यहाँ पर ना वो सारे चेक करके देखेंगे ऑप्शंस जो थे रिडिस्ट्रीब्यूशन वाले और दिस एंड दैट और व्हाटएवर वी हैव सीन, है ना, ये स्टेप के साथ में करना चाहो तो मैंने आपको बता दिया, है ना, स्टैटिक। अब सी डू एडवर्टाइज समरी रूट्स, तो समरी रूट R1 से R2 पे हम भेज ही रहे हैं ना, तो R1 को आप स्टेप बना के देख लो, और फिर अगर आप सिर्फ ये करो कि समरी रूट्स लेकर जाए नहीं जाए, ठीक है, तो स्पेंड सम टाइम विद EIGRP, ट्राई टू डू द लैब्स, नोट इट डाउन, जहां इशू आता है हम लोग उसको नेक्स्ट सेशन में करेंगे, एड्रेस करने की कोशिश। I'll also sit and try to do some kind of research with you. It's been a long time for me also. I have not worked on EIGRP since ages, so there may be some things where I also have to do some kind of troubleshooting. It may take time, but we eventually would try to do that. So this is EIGRP star. Okay, now what will happen if R1 see show IP EIGRP neighbor, तो EIGRP neighbor जब हम लोग देखते हैं तो ये R2 जो है, ठीक है, ये जो R2 है इसमें
कहीं कोई ये ऐसा कुछ नहीं दिखाता है कि वो स्टब है या नहीं है। ये जो इसका हेलो पैकेट आता है ना, उस हेलो पैकेट में ही ये स्टब फ्लैग ऑन करके भेज देता है। तो आगे से ये जब भी भेजेगा, अच्छा नेबर का डिटेल्स भी है यहाँ पर, नेबर डिटेल, तो यू विल सी समवेयर neighbor detail, address, this, that, stub, peer advertising. Can you see that? Okay, connected summary routes, this, surpassing queries, this, that. So this is what it is saying, suppressing queries. It will not send a query. ठीक है, ये suppress कर रहा है queries, है ना, इसको query भेज नहीं रहा। So that was our intent कि query जो है stub के पास नहीं जाना चाहिए। अगर मैं यही चीज दूसरे नेबर के लिए देख रहा हूं, ये तो है 12.2 के लिए, ये है 13.3 के लिए, तो क्या 13.3 के लिए आपको दिख रहा है स्टब पीयर एडवर्टाइज वाला इंफॉर्मेशन? नहीं है, क्योंकि उसको हमने स्टब बनाया ही नहीं है ना। वो क्वेरीज सप्रेस करेगा, क्वेरीज विल बी सेंट आउट, है ना, 3 और 4 से। तो दिस इज वेयर यू कैन चेक इट, शो आईपी IGRP नेबर डिटेल। ओके, all right, got it? Yes or no? Tell me. Okay, so there is a question. The key contents are encrypted. Yes, they are. If we are using MD5, then do keychain have lifetime also? No, no, no. By default, if we are not defining any time, then it will be infinite validity. Then comes, yeah, we can set expiry dates to the keys. Shekhar is saying when we configure summary route, it automatically generates a route pointing to null zero. Yeah. Can we change this behavior? No, I guess no. Because this is for loop avoidance, no. So if we are not pointing out if it will not generate a network which is pointing out to null zero interface, then there will be a big problem, which is routing loop. So I don't think we can do that. Okay, Anup, we have used something like below network. I have a bit confused of below network. Could you please explain? Network 1.1.1.1.0.0.0.0, network 0.0.0.0.255, network 0.0. So see, let me post this question to everyone. Okay, so that everyone should understand what we are talking about. So there is a question from Anu regarding the 3 networks which they have configured. So network 1.1.1.1.0.0.0.0. Okay, so EIGRP में ही ये किया है आपने? Advertise. You are using EIGRP as a routing protocol or some other routing protocol? Okay. Hello. So yeah. Hello. Yeah. Are you talking to me? Please tell me. Yeah, Anoop, I'm talking to you. ये जो नेटवर्क्स आप बोल रहे हो, ये आपके कहाँ यूज कर रहे हैं आप? अपने कंपनी में? ये लास्ट वाला या सर, या लास्ट वाला मैंने अपने ऑफिस में डिफॉल्ट के लिए दिया हुआ है, बेटे काम कर रहा है। हाँ हाँ। एंड सेकंड वाला ऊपर वाला EIGRP में दिया, बट ये भी काम कर रहा है। बट मुझे कंफ्यूजन है सर,
थोड़ा सा बीच वाले में भी और ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? कुड यू प्लीज एक्सप्लेन इट? हाँ, सो सी द थिंग इज, जो पहला आपका नेटवर्क आपने बोला है 1.1.1.0 1.1.11 whatever 0000, दैट मीन्स आप इस नेटवर्क को कंप्लीटली मैच करवा रहे हो। अगर आप इसकी जगह लिखते 255, ठीक है, यहां लगा देते 0, मीन्स कोई भी नेटवर्क जो 1.1.1 से स्टार्ट हो रहा है, चौथे ऑक्टेट में कुछ भी हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 255 हो, व्हाटएवर, दैट ऑल, वो सारे एड्रेस मैच होंगे, मतलब वो सब एडवर्टाइज होंगे, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3। इस सिचुएशन में जब मैंने 1110 और ये दे रखा है 000255, अगर मैं यहां देता हूं 1.1.0.0 0.0.255, यानी कोई भी नेटवर्क जो 1.1 से शुरू हो रहा है, आगे उसके चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 255 हो, व्हाटएवर, फोर्थ ऑक्टेट में भी कुछ भी हो, वो सारे के सारे जो है वो मैच होंगे और एडवर्टाइज हो जाएंगे, ठीक है। यानी हर वो इंटरफेस जिसपे इनसे आईपी स्टार्ट हो रहा है, वो सब पे EIGRP इनेबल हो जाएगा। नाउ इफ यू आर गिविंग 1.1.1.1 एंड 0000 मींस 0 का मतलब होता है एग्जैक्टली मैच द ऑक्टेट वैल्यू, ओके। तो आपने यहां दिया सर हाँ जी, आई एम सॉरी सर आई एम सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये वो पहले वाला केस OSPF का था, जो आप बता रहे थे, बट हाँ, ये वाला केस हम EIGRP में भी यूज कर सकते हैं। हाँ, ये जो वाइल्ड कार्ड मास्क है ना, ये ऐसे ही काम करता है, ये दोनों में यूज कर सकते हैं, सेम ही काम करेगा, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज EIGRP सपोर्ट सबनेट मास्क, एम आई राइट? EIGRP नॉट सपोर्ट सबनेट मास्क। नहीं, नेटवर्क 1.1.1.1 क्वेश्चन मार्क लगाओ आप, ये देख रहे हैं आप इधर क्या लिखा हुआ है, वाइल्ड कार्ड बिट्स, है ना। तो EIGRP वाइल्ड कार्ड बिट्स सपोर्ट करता है, ओके ठीक है। और आप OSPF में जाओ और उधर आप लगाओ 1.1.1.1, ये भी क्या सपोर्ट कर रहा है, वाइल्ड कार्ड बिट्स, है ना। तो दोनों वाइल्ड कार्ड बिट्स सपोर्ट करते हैं, ओके। ठीक है ना। एंड थर्ड वन सर? थर्ड वन इज फॉर डिफॉल्ट नेटवर्क ना। सो डिफॉल्ट रूट आपने डिफाइन किया है। डिफॉल्ट रूट जो है वो आप किस सिचुएशन में डिफाइन करते हो, जब आपको सारा रूट, जो सारा ट्रैफिक जो अनमैच्ड ट्रैफिक है राउटिंग टेबल में, वो सब डिफॉल्ट रूट पे चला जाए। डिफॉल्ट रूट मतलब इन जनरल हम लोग इंटरनेट के ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो आपका क्वेश्चन क्या है इससे रिलेटेड, वो बताएं मुझे। नहीं, इसी के बारे में पूछना था सर, इन चीजों में डिफरेंस क्या मेनली? हाँ, तो ये जो है ना, एनी नेटवर्क विद एनी सबनेट मास्क। अच्छा, आप नेटवर्क कमांड से डिफाइन कर रहे हो इसको हियर, ओके। राउटर EIGRP 1 नेटवर्क 00000000, दिस इज व्हाट यू हैव डिफाइंड, है ना। तो एक्चुअली में आपने यहाँ पर जो ये किया है, इससे क्या हो रहा है, वुड एनीवन टेल मी व्हाट इज हैपनिंग नाउ। मैंने क्या एडवर्टाइज कर दिया, ये 0000 नेटवर्क एंड 0000 वाइल्ड कार्ड मास्क। अभी क्या होगा, अभी सारे इंटरफेसेस एडवर्टाइज हो गए या कुछ और। Let me open chat to see. Okay. Faker is saying 0 equals to exact match, 255 match all. हाँ, ठीक है. That's right. तो 00000000. What does this mean?
on R1, are we advertising every route or just one route which is 0000? One only? Okay. Come on guys, more answers. एक देखिए डिफॉल्ट रूट नहीं है वो, दिस इज नॉट अ डिफॉल्ट रूट. डिफॉल्ट रूट का कमांड होता है आईपी राउट 00000000 वाया सम नेक्स्ट हॉप या एग्जिट इंटरफेस, है ना, कुछ इनमें से होगा वट एवर. So this is default route जहां हम लोग any network, any subnet mask, ठीक है, ये है सबनेट मास्क, ये वाइल्ड कार्ड बिट्स नहीं है, ये ध्यान रखना. The difference here is, here this is network, this is also network. This is wildcard bits, this is subnet mask. Okay, so now tell me, Amisha, every network, Raghuveer allowing all. Okay, Shekhar, allow advertise all routes. Okay, that's it. No more answers. People one route. Wallah. So Habibi, you are right. Hey guys, come on, stop answering questions. Sending answers now. Let me do a quick lab. Let's put a router here. Okay. Wait. Where my router gone? Okay, it's there. No. Okay, what I'll do is I'll connect this router with R5. Quickly, I'll connect it using fast Ethernet 0x0. R6 के ऊपर मैं 3 लूपबैक इंटरफेस बना दूंगा, ठीक है, 6666, 6676, 6686. ओके, और उन तीनों को मैं EIGRP में एडवर्टाइज करना है. लेकिन कैसे एडवर्टाइज करना है, जैसे आप कह रहे हो 0000 से सब हो जाएगा, तो वैसे करके देख लेते हैं, ठीक है ना. अब ये चीजें क्लियर होनी चाहिए आपको. देखो, अब ये मैं बताने के लिए इतना टाइम नहीं लगाना था, बट लेट मी शो यू हाउ इट वर्क्स. R6 custom console putty. Okay, all right, we are on R6. Let's change the settings. There are many small things, है ना, जो हम लोग इग्नोर करते हैं या सोचते ही नहीं है कि are they really worth to try and check, है ना. So sometimes this happens. So interface has 0x0 IP address दे दूं इंटरफेस के बीच 10.1.56.6. Okay, no shutdown. Interface loopback 0, IP address 6666. Interface loopback 1, IP address 6676. Interface loopback 2, 6686, whatever. And R5 पे जाएंगे. R5 के इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 पे IP लगा देंगे. इंटरफेस है 0x0, IP एड्रेस 10.1.56.5. नो शट. राउटर EIGRP में गए और यहाँ पर नेटवर्क एडवर्टाइज कर दूं मैं 56.0.
है। अब R6 पे राउटिंग चला दें, R6 पे राउटिंग चला दें, conf t router EIGRP1 नेटवर्क 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है कि जब मैं नेटवर्क 0 0 0 0 देता हूं, सिर्फ नेटवर्क 0 0 0 0 देता हूं, तो क्या होगा? मैं वाइल्ड कार्ड मास्क दे ही नहीं रहा हूं, क्या ये कमांड ले लेगा? दिख रहा है यहां कैरेज रिटर्न, है ना, ये ले लेगा। मैंने एंटर मारा और अभी देखना कुछ मैसेज आया और एडजेसेंसी भी बन गई, वाह भाई वाह। और शो आईपी रूट EIGRP आप देखेंगे तो इसका फास्ट इथरनेट इंटरफेस से, ये देख रहे हैं आगे 666 का, अच्छा नो ऑटो समरी नहीं किया ना हमने, सॉरी, ठीक है, वो फिर से रीसिंक हो जाएगा। तो मेरे पास में 66666676686 सब मिल रहा है। मैंने क्या किया? मैंने किया नेटवर्क 0000 एंटर, है ना। तो इससे क्या होता है कि इससे आपके राउटर के जितने भी इंटरफेसेस है वो सब एडवर्टाइज हो जा रहे हैं। क्लियर है? अच्छा जी, मैं ये कमांड हटा देता हूं तो नेबरशिप भी हट जाएगी ऑब्वियसली, है ना। मैं इसकी जगह कमांड देता हूं नेटवर्क 0000 एंटर। अभी भी क्या हो रहा है? अभी भी नेबर बन गया और इसका राउटिंग टेबल चेक करो, 6666 6676 और 86 तीनों आ रहे। और अब मैं एक तीसरा कमांड लगाऊंगा, नेटवर्क, वो हटा दिया हूं मैं, 255.255.255.255, फिर नेबर बन गया। एंड व्हेन आई एम चेकिंग राउटिंग टेबल इट विल शो मी all 3 routes. Confused? Now, the question is, what is the difference when we are giving network 0000, network 0000 without any wildcard mask, or network 0000 with this wildcard mask? So let me tell you one thing. जब हम एक्सेस लिस्ट बनाते हैं ना, तब भी हम लोग वाइल्ड कार्ड मास्क यूज करते हैं, यू नो दैट, है ना। और जब एक्सेस लिस्ट बना रहे हैं तो एक्सेस लिस्ट में हम लोग कमांड लगाते हैं परमिट आईपी, कोई भी आईपी ले लो, 1.1.1.1 and its wildcard mask. Why we are giving this? We are giving this to match this wildcard. What this wildcard mask will do? This wildcard mask will match every octet as it is. So 1.1.1.1 कोई भी पैकेट आ रहा है तो अगर वो पैकेट का सोर्स इस चारों ऑक्टेट से मैच हो रहा है तो ही वो परमिटेड है, ठीक है ना। अगर मैं यहां लगाऊं 00255255 तो मतलब अगर वो पैकेट जो इस राउटर के पास आया उसके 3 ऑक्टेट 111 वो मैच हो रहे हैं तो वो परमिटेड है, बाकी इस ऑक्टेट में कुछ भी हो तो वो चलेगा। ये है एक्सेस लिस्ट का कॉन्सेप्ट। पर जब हम नेटवर्क एडवर्टाइज करने की बात कर रहे हैं तो नेटवर्क एडवर्टाइज करने के टाइम पे राउटिंग प्रोटोकॉल का काम क्या है? राउटिंग प्रोटोकॉल में हम कोई भी नेटवर्क एडवर्टाइज कर रहे हैं तो वो उस नेटवर्क के साथ में उसका सबनेट मास्क लेकर जा रहा है नेबर के पास में, बिकॉज इट्स ए क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल EIGRP। तो जब भी मैं ये कमांड दे रहा हूं नेटवर्क 0000, 0 मीन्स एनी नेटवर्क, ठीक है ना। और जब वाइल्ड कार्ड मास्क ये पूछ रहा है
कि भैया क्या लेके जाऊं, तो दिस वाइल्ड कार्ड मास्क मींस हियर वी आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ कंडीशन कि ये मैच करवाना है। मैं ये बता रहा हूं कि भाई ये नेटवर्क में एडवर्टाइज करवा रहा हूं, तो सबनेट मास्क ये लेकर जाना नेबर के पास में। हर इंटरफेस पे तेरे EIGRP इनेबल कर रहा हूं और नेबर के पास में ऐसा ऐसा वाइल्ड कार्ड मास्क लेकर जाना, सबनेट मास्क। दैट्स व्हाट वी आर टेलिंग। हमने जो समरी रूट डिफाइन किया था उसमें हमने क्या किया था, जो समरी रूट हमने R1 पे डिफाइन किया था, इस समरी रूट में हम लोग क्या किए थे, हाँ इस समरी रूट में हम लोग इसको बोल रहे हैं कि 1.1.1.0 है ना लेकर जाना, और साथ में सबनेट मास्क ये वाला लेकर जाना। वैसे ही हम लोग जब इधर डिफाइन कर रहे हैं राउटिंग प्रोसेस के नीचे, तो हम उसको क्या कह रहे हैं, हम लोग सबनेट मास्क की जगह वाइल्ड कार्ड मास्क बोल रहे हैं। तो क्या R2 के राउटिंग टेबल में कोई फर्क पड़ रहा है अगर मैं यहाँ पर 0000 दे रहा हूं या 255 दे रहा हूं या फिर कुछ और, तो उसकी पड़ताल करना। सॉरी R2 नहीं, इधर क्या था R5। तो R5 का राउटिंग टेबल में क्या कुछ चेंज आ रहा है, सो वी जस्ट हैव टू लुक एट दैट। यहां आप देखोगे इट इज /32, ठीक है ना, इधर भी /32 और इधर भी /32 ही आएगा। कहां गया, where it went, /8, ये तो समरी राउट था। This is also /32, 3 subnets. This is also /32 and this is also /32. Okay, तो I was expecting कि यहाँ चेंज आना चाहिए, यहाँ चेंज नहीं आया। I don't know, I need to check this. पर नेबर बन जाएंगे, that I was sure, because it is not an access list where we are matching the octets based on that wildcard bits. Here it is a network command which we are telling this router कि 0000 से मैं सारे इंटरफेसेस पे तेरा इनेबल कर रहा हूं। अगर हम लोग यहाँ पर R6 पे instead of giving this, ये मैं हटा देता हूं, सॉरी क्या था, नो नेटवर्क दिस था ना, हाँ वो देखो मैंने गलत हटाया तो भी ये डाउन हो, व्हाटएवर। तो मैंने ये किया नो नेटवर्क दिस, इसकी जगह मैं करता हूं नेटवर्क 0000 और 00255.255, तो भी ये वेट नेटवर्क 000, हाँ राउटर EIGRP1 नेटवर्क 000, हाँ देखो ये नहीं ले रहा, ये या तो क्या लेगा, या तो 255.255.255.255 लेगा, या फिर ये लेगा 0000। So with 0000 only these two subnet masks will work, wildcard bits will, wildcard mask will work. So give me some time, कल मैं आपको इसका सही जवाब बताऊंगा, because this is something we don't try in production environment, ठीक है ना, क्योंकि this is called as a very lazy and risky advertisement, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे राउटर के सभी इंटरफेसेस पे EIGRP इनेबल हो। मैं चाहता ही नहीं कि मेरे राउटर के कुछ इंटरफेसेस जो हैं वो एडवर्टाइज हों, कुछ नेटवर्क्स एडवर्टाइज हों, तो मैं ये जनरली नहीं करता, मतलब ये जनरली प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में हम लोग नहीं करते। हाँ लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि ये जो आप राउटिंग प्रोटोकॉल चलाते हो तो इसके साथ में एक कमांड चलता है पैसिव इंटरफेस। पैसिव इंटरफेस से मैं क्या करता हूं कि वो इंटरफेसेस जिसपे मेरे को EIGRP नहीं चलाना, जैसे मान लीजिए मैंने चला दिया 0000 सब पे EIGRP चल गया, लेकिन कुछ इंटरफेसेस है जैसे पैसिव इंटरफेस, सीरियल
0/0। तो अभी क्या होगा, सीरियल 0/0 जो है उस पे आपका EIGRP का हेलो जाना बंद हो जाएगा और उस पे नेबरशिप डाउन हो जाएगी, ठीक है ना। R6 पे अभी कोई नेबर है नहीं, सो ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट इट, बट लेट्स ट्राई इट आउट ऑन सम अदर राउटर एंड चेक। पैसिव इंटरफेस दोगे तो क्या होगा, राउटर EIGRP1 पैसिव इंटरफेस सीरियल 0/0, ठीक है। तो ये इस पे क्या करेगा, ये देखो सीरियल 0/0 इज डाउन, इंटरफेस पैसिव, सो नेबर इज डाउन नाउ, ठीक है, क्योंकि इस इंटरफेस पे ये हेलो भेजना बंद कर दिया। सो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन कि भाई ये इंटरफेसेस पे आप EIGRP का हेलो भेजिए, इन इंटरफेसेस पे मत भेजिए। भाई जैसे लूप बैक इंटरफेस है, अब उस लूप बैक इंटरफेस पे क्या हेलो भेजना जरूरी है, वो क्या उधर कोई नेबर है ना। सी in this situation on R1 I cannot define serial 0/0, 0/1 or 0/2 as passive interface because it has neighbors R2, R3, R4 on these interfaces. So if R1 will stop sending hellos on these interfaces, the neighborship will go down. But ये जो loopback interfaces है इसके, क्या इस पे hello भेजना जरूरी है? नहीं, है ना। इस पे हेलो भेजने का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि इधर कोई EIGRP नेबर है ही नहीं, ठीक है। तो मैं इन इंटरफेसेस को पैसिव इंटरफेस बना देता हूँ, ठीक है। सो दिस इज पैसिव इंटरफेस in EIGRP, in OSPF, in RIP, everywhere you can define this passive interface. अब देखो समराइजेशन का भी मैं आपको एक रूल बता दूं। ये जो समराइजेशन हम लोग करते हैं EIGRP डोमेन में, हम ये रूट समराइजेशन OSPF में भी करेंगे। तो समराइजेशन मैं कहीं भी किसी भी राउटर पे कर सकता हूं। I can do summarization on any of these routers in this internet. Doesn't matter कि R1 पे करूं मैं, ये समराइजेशन जो है वो R2 पे भी कर सकता हूं, R3 पे भी कर, लेकिन OSPF डोमेन में सिर्फ ABR और ASBR, एरिया बॉर्डर राउटर और ऑटोनॉमस सिस्टम बाउंड्री राउटर, ये दो ही ऐसे राउटर है जिसके ऊपर समराइजेशन की जा सकती है ना। तो EIGRP में ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है, वेयर एज इन OSPF ये कंडीशन है कि दो ही राउटर्स पे, दो ही जगह पे मतलब आप ये कर सकते हैं रूट समराइजेशन, ऑलराइट, ओके। एंड रूट फिल्टरिंग का हम लोग बात कर रहे थे कि आई डोंट वांट अ पर्टिकुलर राउट टू गेट इनटू R2's राउटिंग टेबल। जैसे R2 है, R2 को अभी कौन कौन से नेटवर्क्स मिल रहे हैं R1 से, शो IP राउट। तो अभी आप देखोगे R1 से इसको किधर गया, 1 वाले मिल रहे थे ना, 111 ये वाला नेटवर्क मिल रहा है, ठीक है, समरी रूट। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये समरी रूट हटा देता हूं, ठीक है ना। मेरे को तीनों नेटवर्क चाहिए और फिर मैं बताऊंगा कि तीनों में से कौन सा रूट नहीं चाहिए। So what I'll do, interface fast ethernet 0/0, no IP summary address EIGRP1, and what was the summary address, 1.1.0.0 255.255.252.0 है ना। तो ये समरी रूट हट गया, रीसिंक हुआ, और इसका राउटिंग टेबल अगर आप अभी देखेंगे तो तीनों नेटवर्क्स अलग अलग आने चाहिए, जो कि आ रहे हैं। समरी रूट अभी हट जाएगा, इट टेक्स सम टाइम टू रिमूव इट फ्रॉम इट्स टेबल। शो IP EIGRP टोपोलॉजी में देखेंगे तो व्हाट यू विल फाइंड 1111 है ना, ये एक समरी रूट है, और 1131 भी है, और बाकी सब भी है, 1121 भी है, ओके। सो द थिंग इज, मैं ये चाहता हूं कि R1 जो है वो R1 का 1111, 1121 और 1131 इनमें से सिर्फ 1131 आए, 1111 and 1121। I don't want these two routes to get into R2's routing table,
ठीक है, तो रूट फिल्टरिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो देखिए हम लोग R2 पे जाएंगे, ठीक है ना, राउटर EIGRP1, यहां पर एक कमांड है डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट। क्वेश्चन मार्क लगाइए, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट। अब आप यहां देख रहे हैं ये क्या आ रहा है, distribute list filter networks in routing updates. So distribute list is used to filter routes, filter networks in routing table, routing updates, sorry. तो जब राउटिंग अपडेट भेजी जाएगी या रिसीव की जाएगी तो उस राउटिंग अपडेट में से ये रूट्स रख लो, ये निकाल दो, ये काम मैं डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट को यूज करके कर सकता हूं। सो डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट का कुछ नाम रखना पड़ेगा, जैसे 1 2, अब वेट, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट का नाम नहीं, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट के साथ में मुझे कोई ना कोई एक्सेस लिस्ट या कोई ना कोई प्रीफिक्स लिस्ट या कोई ना कोई रूट मैप मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक एक्सेस लिस्ट बना लूं और उसमें वो जो दो नेटवर्क मुझे नहीं चाहिए R2 की राउटिंग टेबल में उनको डिफाइन कर दूं, तो मैं उस एक्सेस लिस्ट को यहां मैच कर सकता हूं, ठीक है ना। सो लेट्स से उसका नाम मैं कुछ भी रखूंगा, नंबर 100 रख दिया, है ना। फिल्टर इनकमिंग राउटिंग अपडेट्स या फिल्टर आउटगोइंग राउटिंग अपडेट्स। अब देखो ये जो डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट है, ये डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट आई कैन पुट दिस लिस्ट ऑन R1 और R2 एनीवेयर, राइट। ऑन R1 इफ आई एम पुटिंग इट, आई विल पुट इट आउटवर्ड्स, मतलब आउटगोइंग, टू फिल्टर आउटगोइंग रूट्स, है ना। और अगर R2 पे लगा रहा हूं तो इनकमिंग वाले रूट्स को फिल्टर करने के लिए, तो R2 पे ही लगा देते हैं, एक ही बात है, किसी पे भी लगा दो। तो फर्स्ट आई विल गो बैक एंड आई विल क्रिएट एन एक्सेस लिस्ट। सो IP एक्सेस लिस्ट, मैं एक नाम से एक्सेस लिस्ट बना देता हूं, स्टैंडर्ड या एक्सटेंडेड, कौन सी बनानी है, IP एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड, इसका नाम रख लेते कुछ भी, फिल्टर, ओके, एंटर। नाउ मुझे कौन कौन से नेटवर्क्स नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए 1111 और 1121, ठीक है। तो मैं यहां करूंगा परमिट IP 1.1.1.1, ओके, एंड वेट, permit 1.1.1.1, okay, 0000, and then permit 1.1.2.1 0000, that's it, okay। मैं विदाउट वाइल्ड कार्ड मास्क भी इसको यूज कर सकता हूं, ठीक है ना। तो let's use it with wildcard mask to be more specific. Let's see, router EIGRP1, distribute list, what is my access list name, filter, inbound या outbound, inbound, लग गई distribute list। अभी देखो show IP route EIGRP, oh the neighbor 10.12.1 resync हुआ, root configuration changed, okay, wow। So what has just happened, can someone explain? मेरे को जो रूट्स नहीं चाहिए थे सिर्फ वही आ गए, बाकी रूट्स चले गए, ये क्यों हुआ? Yeah, I'm started getting answers. Permit कर दिया, we permitted only 2 networks. I think we had to deny in the access list. Okay.
yeah. So yeah, that's true. So all are right. The thing is, अगर मुझे सिर्फ 2 नेटवर्क नहीं चाहिए, बाकी सारे चाहिए, तो मैं परमिट कितना कितना नेटवर्क्स को परमिट करूंगा? मतलब मुझे बहुत सारे नेटवर्क्स को परमिट करना पड़ेगा, और सिर्फ 2 ही नहीं चाहिए तो उनको मैं कुछ ना करूं, या फिर मैं जो नहीं चाहिए उनको डिनाई कर देता हूं, बाकी सब ऑटोमेटिकली परमिट लगा देंगे. So let's change it. Conf t IP access list standard filter no permit. Okay. अभी एक्सेस लिस्ट में से अगर कुछ स्टेटमेंट हटाना है तो कैसे हटाएंगे आप? डू शो एक्सेस लिस्ट करिए, और जब एक्सेस लिस्ट करेंगे तो आपको यहाँ दिख रहा है एक नंबर आता है 10 और 20. जो ये पहला स्टेटमेंट है उसके लिए 10, जो दूसरा है उसके लिए 20. मैं पूरी एक्सेस लिस्ट को भी हटा के और नई एक्सेस लिस्ट बना सकता था, पर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में कभी भी एक्सेस लिस्ट मत हटा देना, क्योंकि उस एक्सेस लिस्ट में सिर्फ ये 2 स्टेटमेंट नहीं होंगे, हो सकता है उसमें सैकड़ों, hundreds and hundreds of statements you will find in an access list in production. So be careful. Okay, so what I'll do, no 10, no 20. तो ये दोनों स्टेटमेंट हट जाएंगे, ये वाला भी और ये वाला भी. फिर से देख लो, do show access list. Now there is an access list, but there are no statements. Now I'll put a statement, deny 1.1.1.1. Sorry. And deny 1.1.2.1. अभी क्या होगा? सब अलाउ हो जाएंगे, ओनली इनके ड्यूल के अलावा. अब सारे आ जाएंगे इन दोनों को छोड़ के, यस और नो? यस सर. Okay, Amisha is saying no. Why no? Very good, Amisha. So, and Priyanka as well. See, the thing is, आप लोग एक्सेस लिस्ट का एक बेसिक रूल भूल रहे हैं. एक्सेस लिस्ट में हमेशा एंड में एक implicit deny रूल अपने आप लग जाता है. There is always an implicit deny statement at the end of your access list. तो अगर आपके एक्सेस लिस्ट में कोई भी पैकेट आके मैच हो रहा है, तो जो परमिट किया है तो परमिट हो जाएगा. जैसे 1.1.1.1 से कुछ आया, उसके लिए आपने परमिट लगा रखा है तो परमिट हो जाएगा. अगर आपने उसके लिए कोई स्टेटमेंट नहीं लगा रखा है तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा उसका? डिनाई, क्योंकि इम्प्लिसिट डिनाई स्टेटमेंट लगा हुआ है. तो इसलिए मैं क्या करता हूं, जिन जिन को डिनाई करना होता है मैं लिख देता हूं डिनाई, डिनाई दिस, डिनाई दैट, और परमिट एनी, बाकी सारे परमिटेड हैं सब. तो आपको इस एक्सेस लिस्ट में जाके आईपी एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड फिल्टर, तो यहाँ पर आपको एक नया स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा, परमिट एनी. लेकिन ये स्टेटमेंट लगाने से पहले डू शो आईपी रूट EIGRP देख लें, राउटिंग टेबल में कुछ है? नहीं है, राउटिंग टेबल बिल्कुल खाली है. अब मैं लगाता हूं परमिट एनी, अभी सब कुछ चला गया, ठीक है ना? अभी सब कुछ जो है वो रुक जा रहा है, क्योंकि इम्प्लिसिट डिनाई की वजह से कुछ नहीं आ रहा है राउटिंग टेबल में EIGRP से. अभी मैंने परमिट एनी किया, फिर से देखो कुछ ना कुछ ये रीसिंक हुए, चेंजेस हुए, और अब मैं करता हूं शो आईपी रूट EIGRP, तो देखिए मुझे दिखा रहा है सिर्फ 1131, 1111 एंड 1121 चले गए. सो दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट. तो डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट जो है वो लगाते समय आप उसके साथ में एक्सेस लिस्ट भी यूज कर सकते हो, है ना? और आप उसके साथ में प्रीफिक्स लिस्ट भी यूज कर सकते हो, आप रूट मैप भी यूज कर सकते हो, और ये गेटवे करके ऑप्शन भी है. बेस्ड ऑन गेटवे, इफ यू हैव डिफाइंड एनी गेटवे, यू कैन डिफाइन दैट ओके फ्रॉम दिस गेटवे इफ आई एम गेटिंग रूट्स, आई जस्ट वांट ओनली दीज रूट्स और दैट रूट्स और व्हाटएवर. सो रूट मैप
या प्रीफिक्स लिस्ट कैसे लगाएंगे? प्रीफिक्स लिस्ट आपको मालूम है एक्सेस लिस्ट के जैसा ही लिस्ट होता है प्रीफिक्स लिस्ट विद सम मोर ऑप्शंस रिलेटेड टू योर नेटवर्क प्रीफिक्सेस, है ना। उसमें आप ये कर सकते हो कि प्रीफिक्स लिस्ट, अब जैसे आप आपने ये लगाया एक्सेस लिस्ट में, एक्सेस लिस्ट में स्टेटमेंट परमिट आईपी टक 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 टक, ओके, आईपी एड्रेस वाइल्ड कार्ड मास्क, आप उसमें डिफाइन कर सकते हो प्रीफिक्स लिस्ट में greater than, less than, equal to, this, that, so many conditions you can define there, right? So IP prefix list का कोई भी नाम नंबर दे दो, यहां पर आप दे दो permit 1.1.1.1, sorry, permit question mark IP prefix, okay, so 1.1.1.1/32 क्वेश्चन मार्क। अब ये देख रहे हो ग्रेटर देन जीई, है ना, जीई कितने प्रीफिक्स जो है वो /32 तो मैंने लगा दिया है, उसके साथ ही आप कंडीशन भी लगा सकते हो कि कितने, मतलब ग्रेटर देन 28, ओके, एंड लेस देन 32, तो व्हाटएवर इज कमिंग इन बिटवीन दैट ऑल कैन बी मैच्ड। सो prefix list is like access list with some flexible options of defining prefix bits less than, greater than, and all these conditions, okay. And एक और होता है राउटर रिप में गए तो वहां पर एक होता है ऑफसेट लिस्ट। तो ये आज का आपका क्वेश्चन है कि ये ऑफसेट लिस्ट कैसे काम करता है, ये पता करके आइएगा, है ना। ये रिप में ही चलता है, EIGRP में नहीं चलता है। तो एक्सेस लिस्ट, प्रीफिक्स लिस्ट, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट, ऑफसेट लिस्ट, ये सब में कंफ्यूज मत होना। बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी लिस्ट किधर काम आती है, कैसे काम आती है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट काम हमने ली OSPF सॉरी EIGRP में। ऑफसेट लिस्ट जो है वो सिर्फ रिप के साथ में काम आती है, पर किस लिए काम आती है? रूट फिल्टरिंग के लिए काम नहीं आ रही। चेक करना किस लिए काम आती है। और फिर प्रीफिक्स लिस्ट और एक्सेस लिस्ट में डिफरेंस समझने के लिए कुछ प्रैक्टिकल करके देखना, ठीक है। ये सब CCNA का स्टफ है ये, सो आई एम नॉट गोइंग डीप इनटू दिस, ऑलराइट। सो व्हाट एल्स इन EIGRP? Policy based routing, yes, let's do that. That is a very good thing that we can actually practically करके देखते हैं। तो R1 पे मैंने, अच्छा R2 का डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट वगैरह जो है वो चलने दो, क्या फर्क पड़ रहा है। तो मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि जब भी कोई ट्रैफिक R1 के पास में आ रहा है, किधर से आएगा R1 के पास में ट्रैफिक? सो वी नीड टू ऐड अ राउटर which we have already added here, okay, let's say जब भी कोई ट्रैफिक R6 से R5 के पास में आ रहा है for 1111, R5 उसको किधर से भेजेगा? R5 का राउटिंग टेबल चेक करो, शो IP route EIGRP, अभी 1111 नेटवर्क के लिए किधर से जाएगा? ये 1 वाले सबनेट के लिए सारा ट्रैफिक सीरियल 0/2 और 0/0 पे भेज रहा है। 0/2 और 0/0 which is this and this, क्योंकि इधर तो हमने रोक ही दिया ना प्रीफिक्स और डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट लगा के, तो इधर से तो आएगा नहीं, उसके पास 11111121, है ना। और उसका समरी रूट हमने डाल रखा है जो कि हर इंटरफेस पे वो आ ही रहा है वाया सीरियल 0/2 एंड 0/1, ओके। सो इसको थोड़ा सा बदल देते हैं सिनेरियो को। हम ये कहते हैं कि जी हमारे पास में ना 1111 के लिए जब भी ट्रैफिक आए तो हम उसको सिर्फ और सिर्फ सीरियल 0/0 से बाहर भेजें, ना इधर से भेजें ना इधर से। हम वो डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट हटा ही देते हैं, बेवजह कंफ्यूजन बढ़ रहा है। राउटर EIGRP1 नो डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट filter, okay, so clear IP route star
ओके, अभी R5 के पास में राउटिंग टेबल में चेक करते हैं, तो इसके पास में एक समरी रूट आ रहा है, ठीक है, वो सारे इंटरफेसेस से आना चाहिए ना अभी। Serial 0 by 0, 0. What happened? Why it's not coming? Show IP. RP. It's getting these routes, no? 1111. Show IP EIGRP neighbor. Neighbor तो है ना इसका R5. R5 is its neighbor. Okay. So R5 should also get 1111. Okay. Maybe. See. The thing is, why R5 is not getting this 1111, 1121, 1131 and all? Guys, any ideas why it is not getting 1111, 21 and 31? Why it is only getting summary root, and that too from serial 0 by 0 and 0 by 2, not from serial 0 by 1, which is R2. Any idea? See, the thing is, sorry. Okay. So we are not recording the session today. Okay, we are recording the session. That's what. So Prashant is saying, I think you deleted the wrong distribute. No. We deleted the right distribute list because now we are getting routes in R2's routing table, right? पहले हमारे पास में ये 1121 नहीं आ रहे थे, अभी आ रहे. That means we deleted the right distribute list. ठीक है ना? कारण क्या हो सकता है कि देखिए इधर जो हम लोग यूज कर रहे हैं, दिस इज wait a second, one more thing. In R2, what we have configured, show run section EIGRP. EIGRP में configure हमने क्या किया है वो एक बार चेक करते हैं R2 के ऊपर, just to make sure कि कुछ अच्छा, एक ये redistribute किया हुआ route, which is fine, not a problem, and नहीं की वाला कोई इशू नहीं है, नेबरशिप बना हुआ है ना, 5 के साथ भी नेबरशिप अप है, सो दैट इज आल्सो फाइन. हाँ, ये स्टब है. ऑलराइट, सी दिस इज व्हाट इज हैपनिंग गाइस, दिस इज अ स्टब राउटर. ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस स्टब फ्लैग, if you will show IP EIGRP neighbor detail, so now you will find that neighbor, okay, which is R2, it is sending only summary routes, connected summary of routes, means advertising routes, but only summary of connected routes, means it's not passing me any route which is coming from R1. Similarly, R1 पे अगर जाके चेक करोगे, R1 पे आप अगर देखोगे do show IP route EIGRP, तो क्या आपको 5555 के लिए वाया R2 नेटवर्क है? नहीं है. 5555 तक पहुंचने के लिए ये देख रहे हो 55, पहले 3 रास्ते थे, है ना, लेकिन अभी क्या दिखा रही है, वाया ओनली सीरियल 0 by 0, क्योंकि ये वाला जो है R2 ये भेजना बंद कर दिया है ना, R2 ने समरी रूट कोई भी भेजना बंद कर दिया. तो स्टब करने पर बाय डिफॉल्ट सिर्फ स्टब किया हमने, तो उसमें क्या होगा, वो राउटर जो है उसके पास में क्वेरी नहीं आएगी, और वो राउटर जो है अपने नेबर को आगे कोई नेटवर्क एडवर्टाइज भी नहीं करेगा. ठीक है ना, कहीं आगे से अगर कोई नेटवर्क आ रहे हैं तो एडवर्टाइज ही नहीं करेगा. अब ये क्यों हो रहा है, इसको एक बार समझ लो. देखो, दिस इज द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द डे. R3 जो है उसका नेबर है R5. R5 को मैंने बोला स्टब राउटर. अब ये क्या करेगा,
R3 will not send any query to R5 and R5 will not advertise any routes to R3. क्या जरूरत है? क्यों? क्योंकि कनेक्टेड रूट्स तो एडवर्टाइज कर देगा ये। R5 के आगे कोई स्विच लगा हुआ है, उधर कोई नेटवर्क है, तो वो तो कनेक्टेड रूट है, वो तो इधर डाल देगा। लेकिन अगर R5 से आगे कोई और एक राउटर लगा हुआ है ना, और उस राउटर से कोई नेटवर्क आ रहा है, तो वो उसको आगे नहीं भेजेगा। अगर कोई कनेक्टेड रूट है तो वो तो भेज देगा, लेकिन क्योंकि ये स्टब राउटर है भाई, इस स्टब का मतलब ये हुआ कि इसके आगे और कोई राउटर नहीं है। दिस इज द लास्ट राउटर, दिस इज द एज राउटर, राइट? सो इट्स नॉट एक्सपेक्टेड कि इसके पास में कहीं से और से अपडेट आ रहा है और वो और अपडेट इसको भेजे। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर, राइट? तो मैं R2 पे जाके वो स्टब वाला हटा देता हूँ, conf राउटर EIGRP1 नो EIGRP stub. Okay, now we'll go to R5 and we'll check show IP route EIGRP. So now you will see 1.1.1.1 3.1 2.1 and the fast Ethernet interface से इसको मिल रहा है कहीं से, सॉरी सीरियल 0/1 से मिलने लग गया ना। हाँ ये रहा 0/1 0/2 0/0 0/1। ओके, तो ये जो समरी रूट है ये तो इसको 0/0 0/2 से ये ले रहा है, लेकिन ये वाला जो रूट है इंडिविजुअल रूट ये 0/1 से ले रहा है। क्यों ले रहा है? क्योंकि इंडिविजुअल जो रूट्स है उसका मैट्रिक जो है वो इधर से बेटर है। आप देख रहे हो हमने किया क्या है, हमने इधर से समरी रूट भेज दिया, इधर से भी समरी रूट भेज दिया, इधर से भी समरी, इधर से समरी रूट मैंने हटा लिया था शायद R1 से। लेट्स चेक इट अगेन। शो रन इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, ठीक है? तो इधर से समरी रूट जो है वो मैंने हटा लिया, ठीक है? सीरियल कौन सा इंटरफेस था इसका? 0/1, सीरियल 0/1 पे समरी रूट लगा रखा होगा हमने। हाँ ये हमने लगा रखा है। तो ये समरी रूट जो है वो फास्ट इथरनेट इंटरफेस पे भी लगा दो, तो फिर R5 को ये उधर से भी मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है? /22 सीरियल 0/1 है ना। अभी देखो सीरियल 0/1 से ही मिल रहा है, बाकियों से मिलना बंद हो गया, क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग अभी लोड बैलेंसिंग नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए जो बेस्ट रूट है उधर से मिल रहा है, ठीक है ना? अभी जो बेस्ट रूट है उधर से मिलना शुरू, पहले इधर से बंद था तो यहाँ दोनों जगह से मिल रहा था, क्योंकि ये इक्वल पाथ थे, तो लोड बैलेंस हो रहा था, दोनों तरफ से इसको वो नेटवर्क मिल रहा था। जब मैंने यहाँ से चालू किया तो ये दोनों ही बंद हो गए, क्योंकि लोड बैलेंसिंग नहीं कर रखी है, ना इक्वल पाथ ना अनइक्वल पाथ, कुछ भी नहीं है। तो फिर ये सिर्फ एक ही जगह से मिल रहा है। ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन ये बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है? सो शो आईपी रूट में आपको दिखेगा कि अब ये 1111 जो समरी रूट है, दिस इज कमिंग फ्रॉम सीरियल 0/1 एंड ओनली समरी रूट, इट्स नॉट इवन सेंडिंग द जो अलग अलग तीनों रूट्स थे, ठीक है ना? क्यों है ऐसा? अलग अलग रूट्स क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि अब हमने तीनों ही इंटरफेस से सिर्फ समरी रूट ही भेज रखे, और तीनों इंटरफेसेस में से ये बेस्ट है, तो इसका समरी रूट इसके पास पहुंच रहा है। इंडिविजुअल रूट ना इधर से आ रहा, ना इधर से, ना इधर से, तो किधर से नहीं आ रहा है ना? तो दिस इज द सिचुएशन। ओके, आई होप यू गाइज आर गेटिंग इट। नाउ आई विल टेक क्विक 2 minutes एंड आई विल फिनिश इट ऑफ। मैं क्या करता हूं, इंटरफेसेस सभी से समरी रूट हटा देता हूं। नो इंटरफेस सीरियल 0/1, नो इंटरफेस सीरियल 0/2, नो, तीनों से हटा दिया। तो अभी R5, अब देखो मैंने तीनों से समरी रूट हटा दिया है, तो अभी R5 के पास में इंडिविजुअल रूट आएंगे तीनों, 1111 1121 1131, और वो तीनों इंडिविजुअल रूट किधर से आएंगे? इधर से वाया R2, वाया R3 या वाया R4? वाया R2, बिकॉज दैट्स द बेस्ट रूट। यहाँ फास्ट इथरनेट लिंक है, इधर बैंडविड्थ ज्यादा है, ये मैट्रिक अच्छा दिखा रहा है बार बार इस रूट का,
तो इधर से ही आएगा। अगर लोड बैलेंसिंग करोगे वेरिएंस लगा के अनइक्वल पाथ लोड बैलेंसिंग, तो ही ये इन दोनों पे डालेगा। तो चेक कर लेते हैं, R5 पे आना चाहिए तीनों अलग अलग रूट, और वो भी सिर्फ सीरियल 0/1 से। तो बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, तीनों रूट आ रहे हैं और वो आ रहे हैं सीरियल 0/1 से। क्लियर है? अब मैं क्या करूं, मैं चाहता हूं कि साहब ये जो इस पे जस्ट सेकेंड। ओके, तो इस पे पॉलिसी बेस्ड राउटिंग कर दें, ठीक है ना। अब पॉलिसी बेस्ड राउटिंग क्या करना चाहता हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, व्हाट इज माय मोटिव, आई वांट any traffic which is coming from R6 to R5 for 1111, by default R5 is sending it to R2 and R2 is forwarding it to R1। मैं ये चाहता हूं कि ऐसा ना हो कि R6 से R5, R5 से R2, R2 से R1। मैं ये चाहता हूं कि 1111 के लिए R5 R3 को भेजे, 1121 के लिए R4 को भेजे, 1131 के लिए R2 को भेजे। मैं ये चाहता हूं, तीनों के लिए अलग अलग रास्ते, ठीक है। और तीनों ये R1 के पीछे है। इट्स ऑलरेडी 10 o'clock। आई लीव दिस टू यू, ये आपका होमवर्क है, PBR करके आओ, देखो कैसे होता है। एटलीस्ट यू गाइज विल ट्राई। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, जस्ट 2-3 कमांड्स, दैट्स इट। इसको करके आओ, नहीं तो कल हम लोग क्लास रखेंगे। कल का टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा। कल का टाइम हम लोग इवनिंग का नहीं रखेंगे इतना लेट, हम थोड़ा जल्दी रखेंगे। कल सैटरडे है, probably maybe 5 o'clock or something, if you guys all are okay, क्योंकि कहीं और तो जाना नहीं है, घर पे ही रहना है। तो अगर ऑफिस का काम भी होपफुली नहीं होगा कल, तो इसको 3-4 बजे निपटा दें। एनी डाउट्स, मतलब टाइम में? नो करण, ओके। अनूप 3, make it after 4, 3 better है, okay, okay, okay। So the thing is, make 3-hour class anytime is okay on weekends, okay, 5 is okay, this is okay. Okay, so most of the people are saying 5, so we'll keep it at 5, okay, so 5 to 7, all right। So that's it for the day, guys. I hope this has been informative for you. I hope you will go back and try to do some labs on your own. If you find any difficulty, post your questions in the group. I'll try to answer them. है ना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो ग्रुप में डालो। और हाँ, अरे अभिषेक आपका क्वेश्चन रह गया। ओके, विल टेक इट टुमारो, ठीक है। एंड yeah, that's it for the day. Thank you so much.